Yeah, hello guys. We are going to discuss about the topics which are important for your FMG exam, the coming exam. So first of all, I wish कि आप सबका ये exam अच्छा हो and I wish you all good luck. And these are some important topics we will discuss definitely with the questions wise so that you can understand कि किस type के questions आते हैं. And these are the topics which are very important. So at least revise these topics before going to exam. So guys, the question number 1 is a patient diagnosed with rheumatoid arthritis on medications. After few years, he develops bull's eye maculopathy and found to have the corneal opacity. Which drug is most likely to cause this condition? So guys, one of the very important question, one of the very important topic they are asking about the DMARDs, disease modifying anti-rheumatoid drugs, and the drugs which are causing bull's eye maculopathy. So it is like this type of appearance in the macula, and corneal opacity. So opacity over the cornea, this type of vertical opacity will be there. So what is the most likely drug causing all these problems? So this is hydroxychloroquine, HCQ. Why it is important? Because HCQ आपको पता ही है, we have used in the COVID patients. So HCQ toxicity is important. Basically HCQ is hydroxychloroquine. So it is the chloroquine only. It is the longer acting drug comparatively. And this HCQ is in the past it have been used for the DMARD purpose. Now it is used in the COVID patients. You have used in the COVID patients. अभी तक कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है जो रिसेंट स्टडीज आ रही है उसके हिसाब से, बट स्टिल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बेस्ट डीमार्ड कौन सी है, तो बेस्ट डीमार्ड है आपके पास मिथोट्रेक्सेट. तो मिथोट्रेक्सेट के बारे में भी जरूर पढ़ लेना कि मिथोट्रेक्सेट के यूज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन कम्स टू गाइज अ 56-year-old women complain to her physician of frequent heartburn. So there is heartburn and pain in the substernal region. तो definitely कि कुछ उसको जलन हो रहा है, substernal region है, heartburn है. The woman had started an appropriate therapy for osteoporosis 2 weeks earlier. So typical case है कि patient is using the osteoporosis drug and now she is suffering of substernal pain or chest pain. Which of the following drug most likely causing this problem? तो guys osteoporosis की drugs हैं, prednisolone तो osteoporosis में यूज ही नहीं करते. Prednisolone can cause the osteoporosis. Raloxifene can be used, it is SCRM, लेकिन इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है कि सीवियर पेन हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए. टेरीपेराटाइड, इट इज द रिकॉम्बिनेंट पैराथायरॉयड हार्मोन, रिकॉम्बिनेंट पैराथायरॉयड हार्मोन, एंड ये इंजेक्शन है, राइट. तो इससे भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. एलेंड्रोनेट इज द बिसफॉस्फोनेट, एलेंड्रोनेट इज द बिसफॉस्फोनेट. और इस बिसफॉस्फोनेट का क्या मेन साइड इफेक्ट है इसका? बिसफॉस्फोनेट्स, इसका मेन जो साइड इफेक्ट है वो है आपके पास, सो इट इज बिसफॉस्फोनेट, एंड द मेन साइड इफेक्ट ऑफ बिसफॉस्फोनेट इज रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस. सो दिस ड्रग कैन कॉज द रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस. सो बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट इज हैविंग द पेन एंड ऑल. तो पेशेंट को एडवाइस देना है कि 30 मिनट तक एटलीस्ट आपको लेटना नहीं है, अपराइट पोजिशन, खाली पेट दवाई लेनी है, एम्प्टी स्टोमक इन द मॉर्निंग विद फुल ग्लास ऑफ वाटर. दिस एडवाइस यू नीड टू गिव टू द पेशेंट टू अवॉइड दिस रिस्क ऑफ रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो द टॉपिक इंपॉर्टेंट इज ड्रग्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस. डोंट फॉरगेट, मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, ये टॉपिक जरूर पढ़ना, क्योंकि अब क्वेश्चन तो एक ही ड्रग पे दे सकते हैं बट बाकी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. देन गाइज अ 32-year-old मेल फिजिशियन डायग्नोज्ड एज कोविड-19. आजकल पता ही आपको फिजिशियंस में, डॉक्टर्स में कोविड-19 बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ बिकॉज वी आर द हाईली एक्सपोज्ड, एंड यूजिंग द डेक्सामिथासोन फॉर मोर देन 14 days. अब बीच में बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि लोगों ने स्टेरॉइड्स को मिसयूज किया. तो यहाँ पे देखिए डेक्सामेथासोन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, राइट, वन ऑफ द पोटेंट, एंड इट वाज यूज्ड फॉर मोर देन 14 days. डेवलप द ब्लैक कलर इन्फेक्शन इन द साइनस. तो साइनस जो है आपके वहाँ पे इन्फेक्शन मिला और ब्लैक कलर का अपीयरेंस था. सो दैट इज टिपिकली ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस. तो गाइज इफ देर इज म्यूकर माइकोसिस वी शुड नो अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस फंगल इन्फेक्शन. तो फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हुआ, आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट क्या है फंगल इन्फेक्शन में. एंटी फंगल ड्रग पे क्वेश्चन जरूर आएगा, राइट, तो प्लीज रिवाइज. सो यू कैन सी आउट ऑफ दिस टर्बिनाफिन की बात करें तो टर्बिनाफिन इज इंपॉर्टेंट फॉर डर्मेटोफाइटोसिस, तो उसका तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, डर्मेटोफाइटोसिस. इट्राकोनाजोल, इट्राकोनाजोल इज एजोल, दैट इज मेनली इंपॉर्टेंट फॉर कैंडिडा, स्टोप्लाज्मा, राइट, इनके लिए इंपॉर्टेंट है. लैम्ब, यस, लैम्ब इज द ड्रग ऑफ चॉइस. Lamb is drug of choice for mucormycosis. Lamb is drug of choice for invasive aspergillosis. Also it is used for meningitis, cryptococcal meningitis. तो लैम्ब बहुत इंपॉर्टेंट है. रिफाम्पिसिन तो टीबी का दवाई है, उसका कोई रिलेशन नहीं है. उसके बाद गाइस तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक एंटी फंगल. नेक्स्ट इज MDR TB और XDR TB. ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है, तो वी शुड नो व्हाट इज MDR.
whenever we say multi drug resistant TB, तो रिमेंबर गाइज MDR TB का मतलब है कि गाइज H+R ये 2 ड्रग होना चाहिए, राइट। XDR TB की अगर हम बात करें, XDR TB, तो XDR TB इज बेसिकली H+R plus 1 of the fluoroquinolone, so that is the second line drug, and plus 1 injectable aminoglycoside। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स तो इंजेक्टेबल ही हैं, तो यहाँ पे ये 4 ड्रग है। तो गाइज अगर हम करें H+R तो ये MDR है, इसमें आप तीसरी ड्रग भी ऐड कर दो तो भी MDR ही रहेगी, बिकॉज फॉर XDR वी नीड द 4 ड्रग। तो 2 ड्रग कम से कम होनी चाहिए प्लस माइनस एनी अदर, वो MDR है। यहाँ पे भी प्लस माइनस एनी अदर, लेकिन अगर ये 4 हो गई इकट्ठी तो आप XDR बोलेंगे। So out of these you can see isoniazid fluoroquinolone, isoniazid rifampicin, yes, this is typical MDR, this is typical MDR। अगर फ्लोरोक्विनोलोन, कैनामाइसिन ये भी हैं तो ये MDR में काउंट हो सकता है, लेकिन टिपिकल MDR यही है H+R, राइट। मेनली जो MDR TB हम बोल रहे हैं तो पर्पज सिर्फ इतना है कि HR रेजिस्टेंस होना चाहिए। तीसरी कोई भी ड्रग है तो हो सकता है वो भी MDR में काउंट होगा, लेकिन मेन पर्पज इज H+R रेजिस्टेंस। डोंट फॉरगेट द जीन RPO, RNA polymerase gene in the rifampicin resistance। तो important है MDR TB, resistant TB। 40-year male patient, next question, presented with the pain in the right greater toe, serum uric acid level is raised। so guys typical question है gout का, so it is the case of gouty arthritis। बहुत ही important topic है gout frequently asked। बेस्ट ड्रग टू बी यूज्ड इन द कंट्रोलिंग दिस अक्यूट कंडीशन। जब भी गाउट पे क्वेश्चन आए ऑलवेज सी की व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट द अक्यूट और दे आर आस्किंग अबाउट द ड्रग फॉर क्रॉनिक और हाइपरयूरिसेमिया। ज़्यादातर कंफ्यूजन यही करेगा आपको एग्जाम में अक्यूट और क्रॉनिक में, तो आपको बस देखना है कि पूछना क्या है। अक्यूट पूछा है तो डेफिनेटली नॉट एलोपिरिनोल, नॉट प्रोबेन एसिड। दिस कोल्चिसिन इज द ड्रग फॉर अक्यूट गाउट। एस्प्रिन तो गाउट में यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज एस्प्रिन इनहिबिट द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। तो कोल्चिसिन इज द बेस्ट ड्रग टू ट्रीट दिस अक्यूट कंडीशन। ना डोंट बी कंफ्यूज कि सर एनसाइड्स बेस्ट होना चाहिए, ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। अगर एनसाइड्स होते तो वो भी अच्छा ड्रग है, कॉमनली यूज्ड है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी यूज करना अक्यूट कंडीशन में, और क्रॉनिक अगर है तो डेफिनेटली अवर पर्पज शुड बी द ड्रग फॉर कंट्रोलिंग द हाइपरयूरिसेमिया। तो गाउट जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए पेशेंट प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल आफ्टर कंज्यूमिंग ए टैबलेट ऑफ 0.2 मिलीग्राम डाइजोक्सिन 8 टैबलेट्स। तो सोचिए कि डाइजोक्सिन, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ECG showing the ST depression and QT changes. What should be the initial management of this patient? तो गाइज जब भी डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो, डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी में पेशेंट को वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होते हैं, और जब भी पेशेंट को वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होंगे तो क्या आप यूज करना चाहोगे? तो यहाँ पे देखिए वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हैं, ECG में चेंजेस आ रहे हैं। So the typical drug is lignocaine. Lignocaine is the drug of choice for digitalis induced ventricular arrhythmia. So don't forget to revise the treatment of digitalis toxicity. नाइट्रेट्स का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, एडिनोसिन का कोई रिलेशन नहीं है। डिजीबाइंड यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तभी यूज करना जब सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी हो। तो यहाँ पे सिर्फ 8 टैबलेट यूज किए उसने, और वहाँ पे पेशेंट को एरिथमिया है, तो लिग्नोकेन इज द बेस्ट ऑप्शन। देन गाइज अ फीमेल पेशेंट presenting with ovarian cancer was on cisplatin। So again cisplatin, platinum compound, one of the frequently asked drug। He presented the hospital with several episode of vomiting। So it is the drug which is causing vomiting frequently। After giving an antiemetic drug, the patient developed dystonia। So ideally जो आपको बार बार क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर ondansetron is the drug of choice या aprepitant is the drug of choice for the late onset vomiting। लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है कि एंटीएमेटिक ड्रग दिया और अब डिस्टोनिया हो गया पेशेंट को, तो द एंटीएमेटिक ड्रग मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज। तो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी ड्रग डिस्टोनिया करेगी? डिस्टोनिया मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। एक्स्ट्रा पिरामिडल मतलब डोपामिन ब्लॉक्ड। डोपामिन ब्लॉक्ड मीन्स देयर आर 2 ड्रग, ईदर एंटी साइकोटिक्स। तो अगर एंटी साइकोटिक पूछे तो फिर वो आप आंसर देना हेलोपेरिडोल वगैरह, टिपिकल एंटी साइकोटिक्स, न्यूरोलेप्टिक्स, और या फिर एंटी एमेटिक्स। और एंटी एमेटिक्स में से कौन सी ड्रग डोपामिन को ब्लॉक कर रही है और ब्रेन में जा रही है? दैट इज मेटोक्लोप्रामाइड। डोमपेरिडोन इज नॉट रीचिंग टू ब्रेन। ओंडेनसेट्रोन का तो डोपामिन पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, प्रोमिथाजिन का भी कोई इफेक्ट नहीं है, ये तो ड्रग ऑफ चॉइस है अगर कीमोथेरेपी में देखें तो। बट आउट ऑफ दिस मेटोक्लोप्रामाइड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर दिस पर्पज, एंड मेटोक्लोप्रामाइड कैन कॉज द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम डिस्टोनिया। और अगर आपसे पूछे ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिस्टोनिया, सो डोंट फॉरगेट द सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स यूज करनी है। बेस्ट तो है बेंजहेक्जोल। अगर बाई चांस ऑप्शन में बेंजहेक्जोल नहीं मिले तो फिर फर्स्ट जनरेशन एंटीस्टैमिनिक्स यूज कर लेना, उसमें आप कॉमनली यूज करते हैं प्रोमिथाजिन।
So these are the drugs we are using, right, in this patient. So metoclopramide is the best answer. बेस्ट क्या मतलब वही आंसर रहेगा इसमें. A patient present with a 6 episode of depression, mania and hypomania in last 1 year with recovery phase in between. तो कभी थोड़ा मेनिया में है या हाइपोमेनिया में है और जो है बीच बीच में पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन बीच में आप देख रहे हैं पेशेंट नॉर्मल फेज भी है. तो दिस इज टिपिकल बाइपोलर डिसऑर्डर. अगर पेशेंट नॉर्मल फेज में नहीं जा रहे तो फिर वो साइक्लोथाइमिया है. बीच बीच में अगर नॉर्मल फेज नहीं आ रहा वो साइक्लोथाइमिया है, साइक्लिक चेंजेस है. दिस इज टिपिकली बाइपोलर. तो अगर बाइपोलर है और मोर देखिए 6 एपिसोड है, अगर मोर देन 4 एपिसोड्स हैं सो दैट इज रैपिड साइक्लिंग. मोर देन 4 एपिसोड्स मीन्स रैपिड साइक्लिंग है. और जब भी रैपिड साइक्लिंग होगा, रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर, तो इन द रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर द बेस्ट ट्रीटमेंट इज वाल्प्रोइड. वैसे ओवरऑल जो बेस्ट होती है वो है लिथियम, बट इन द रैपिड साइक्लिंग वाल्प्रोइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस. डोंट फॉरगेट, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो फिर क्या यूज करोगे. प्रेग्नेंट लेडी में बाइपोलर या मेनिया में अगर क्वेश्चन पूछे तो टिपिकल एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जैसे कि एरिपिप्राजोल, क्विटियापिन, एटिपिकल वाली यूज करनी है प्रेग्नेंट लेडीज में, राइट. लेकिन लिथियम में रिस्क है एप्स्टीन एनोमली, वाल्प्रोइड में रिस्क है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो वो आपको जरूर याद रखनी है. देन गाइज प्रेगनेंसी की पे जरूर क्वेश्चन आता है, या तो प्रेगनेंसी की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे कि लेबेटालोल, मिथाइलडोपा, या प्रेगनेंसी में साइकोसिस पूछ लेते हैं या एंटी थायराइड पूछ लेते हैं. तो प्रेगनेंसी वाला 2-3 जगह जो कॉन्सेप्ट है जरूर याद रखना है. या फिर एपिलेप्सी में पूछ लेते हैं, राइट, एल ग्रुप ऑफ ड्रग. तो ये 3-4 जो टॉपिक्स हैं प्रेगनेंसी से, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, साइकोसिस या बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें ये, और उसके अलावा एक जगह मैंने और बताया हाइपरटेंशन, राइट. तो इन 3-4 जगह प्रेगनेंसी में जरूर क्वेश्चन आ जाता है, जरूर से पढ़ लेना. ए पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन ऑन द फेस विद विच एग्रेवेट्स ऑन द स्माइलिंग एंड वाइल टचिंग. तो जब आप टच करते हैं, स्माइल करते हैं, पेन बढ़ रहा है, फेस में पेन है, तो दिस इज टिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया. तो अगर पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है तो फिर बेस्ट ड्रग कौन सी, वो आपको पता ही है, कार्बामेज़ेपिन, राइट. तो ये लेवेट्रासेटाम जो है वो प्रेगनेंसी में यूज करते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है. प्रेगनेंसी में सेफ है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं है इससे, लेवेट्रासेटाम. ये अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो लेवोट्रिजिन. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 52-year पेशेंट कम्स टू द इमरजेंसी विद सीवियर चेस्ट पेन. हिज ब्लड प्रेशर वाज 150/90 एंड डायग्नोज्ड विद क्रोनिक एंजाइना पेक्टोरिस. तो पेशेंट को चेस्ट पेन है, बीपी ज़्यादा है, एंजाइना का हिस्ट्री है. व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. अब बेसिकली इसको हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है, लेकिन पेशेंट को एंजाइना है उसके बेसिस पे देनी है. तो ये एसेंशियल हाइपरटेंशन तो नहीं है, ये एंजाइना का पेशेंट है. तो गाइज इफ द पेशेंट इज हैविंग एंजाइना एंड वी वांट टू कंट्रोल द बीपी, तो इस्केमिक हार्ट डिजीज पेशेंट्स अगर हैं और उसमें आपको बीपी भी कंट्रोल करना है तो बेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव कौन सी होगी. तो ऐसे केस में हमेशा बीटा ब्लॉकर्स यूज करिए. बीटा ब्लॉकर्स आर बेस्ट ऐसे केस में. एम्लोडिपिन तो गलती से नहीं देना, हार्ट रेट बढ़ने का रिस्क है. एनालाप्रिल जो है उसका एंजाइना में कोई रोल नहीं है, डायूरेटिक्स का एंजाइना में कोई रोल नहीं है. तो आपको एंजाइना को भी कंट्रोल करना है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बीटा ब्लॉकर, राइट. तो अगर प्रिंजमेटल एंजाइना होता तब हम सोचते हैं एम्लोडिपिन का, लेकिन क्रॉनिक एंजाइना पेक्टोरिस है तो हम क्लासिकल एंजाइना मान के ही आंसर देंगे. सो एंजाइना पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. देन गाइज एन एल्डरली पेशेंट केम विद द फीचर्स लाइक रिजिडिटी, हाइपोकाइनेजिया. तो टिपिकली पार्किंसोनिज्म, एल्डरली पेशेंट है, रिजिडिटी है, हाइपोकाइनेजिया है. गाइज आई एम टेलिंग यू या तो पार्किंसोनिज्म पे या एल्जाइमर्स पे, और तीसरा माइस्थेनिया ग्रेविस. इन 3 क्लिनिकल कंडीशन में एक कंडीशन जरूर पूछते हैं, कभी कभी दोनों पूछ लेते हैं, कभी कभी तीनों पूछते हैं. तो पार्किंसोनिज्म पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड. तो डोनेपेजिल, मेमेंटिन, रिवास्टिगमिन, ऑल दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर एल्जाइमर्स. डोनेपेजिल बेस्ट है, एल्जाइमर्स में यूज करनी है. यहाँ पे पेशेंट को पार्किंसोनिज्म है, रोपिनिरोल, प्रामीपेक्सोल, दैट इज डोपामिन एगोनिस्ट. और जो भी ड्रग डोपामिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है वो फिर पार्किंसोनिज्म में यूज कर सकते हो. लेवोडोपा डोपामिन प्रिकर्सर है. बाकी डोनेपेजिल, मेमेंटिन ये सब क्या है, ये सब है कोलिनर्जिक्स, एंड कोलिनर्जिक्स आर यूज्ड फॉर एल्जाइमर्स. तो एसिटाइल कोलिन एल्जाइमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और डोपामिन पार्किंसंस के लिए इंपॉर्टेंट है. बोथ आर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर इन ओल्ड एज पेशेंट. तो ओल्ड एज में क्वेश्चन आए जरूर आपको पार्किंसंस या फिर एल्जाइमर्स में कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा. हाई एटीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, ए पर्सन कंप्लेन्स ऑफ ब्रेथलेसनेस एंड हेडेक. सो दिस इज टिपिकली माउंटेन सिकनेस. हाई एटीट्यूड पे पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है तो हाई एटीट्यूड सिकनेस यू कैन से. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बेस्ट फॉर द मैनेजमेंट.
तो जब भी हाई एटीट्यूड पे पूछे बेस्ट ड्रग क्या रहेगी, बेस्ट ड्रग इज एसिटाजोलामाइड, राइट। तो ये तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर सिरोटिक ईडीमा पूछे सिरोटिक, तो फिर ये वाला यूज करना स्पानोलेक्टोन। और अगर आपको पेशेंट पूछे इन द टू रेज्ड आईसीपी पेशेंट्स, हेड इंजरी पेशेंट्स वगैरह में, तो फिर मैनिटोल बेस्ट है। या एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा पूछे, ग्लिसरॉल जो है वो ओरल है, तो ये दोनों मैनिटोल और ग्लिसरॉल जो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं। तो यहाँ पे एसिटाजोलामाइड बेस्ट है इन द माउंटेन सिकनेस, स्पानोलेक्टोन फॉर द सिरोसिस पेशेंट। तो इडीमा डायूरेटिक्स रोल वेरी इंपॉर्टेंट। एमिट्रिप्टिलिन दैट इज वन ऑफ द ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, TCH, toxicity. There was ECG changes with broad QRS complex and right axis deviation. तो गाइस याद रखना TCH जो है इसके टॉक्सिसिटी जब भी होगी तो दो प्रॉब्लम होगा, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस और दूसरा जो है यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आते हैं, एंटीकोलिनर्जिक। तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट विल बी देयर। तो जब भी अगर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है तो आपको एट्रोपिन तो गलती से नहीं देनी है, तो एट्रोपिन कभी नहीं देनी है। नैलोक्सोन तो ओपियोइड के लिए है, नैलोक्सोन इज द एंटीडोट फॉर ओपियोइड। फ्लूमाजेनिल इज द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइज़पिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक पैरासीटामोल का एंटीडोट, एक बेंजोडाइज़पिन का एंटीडोट, एक ओपियोइड का एंटीडोट, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, राइट। एट्रोपिन जो है ओपी पॉइजनिंग के लिए, नैलोक्सोन ओपियोइड के लिए, फ्लूमाजेनिल बेंजोडाइज़पिन के लिए, पैरासीटामोल के लिए नेक। तो यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे एसिडोसिस को करेक्ट करना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। बेस्ट तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाकी कोलिनर्जिक यूज कर सकते हो, फाइसोस्टिग्म वगैरह यूज कर सकते हो। Then guys, the patient present with severe headache associated with photophobia, phonophobia. तो guys माइग्रेन क्वेश्चन ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माइग्रेन में आपको अगेन वही देखना है कि एक्यूट पूछा है या फिर पूछा आपको प्रोफाइलैक्सिस। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, यहीं पे कंफ्यूज करेगा। तो हेडेक विद फोटोफोबिया, लाइट से प्रॉब्लम है, फोनोफोबिया, राइट, रिंगिंग सेंसेशन है। व्हाट इज द ड्रग फॉर इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट मतलब अक्यूट, और एक्यूट के लिए बेस्ट ड्रग है ट्रिप्टान्स। अगर प्रोफाइलैक्सिस पूछता तो प्रोप्रेनोलोल। ड्रग तो सारी माइग्रेन की हैं, लेकिन आपको देखना है कि एक्यूट पूछा है क्रॉनिक पूछा है, राइट। तो माइग्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अ प्रेग्नेंट फीमेल विद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन टुक एंटी माइक्रोबियल फॉर द सेम। द बेबी ऑफ दिस फीमेल डेवलप टेंडन रप्चर एंड आर्थ्रोपैथी। आई टोल्ड यू प्रेगनेंसी एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी सेफ है, याद रखना। पेनिसिलिन सेफ है, सिफेलोस्पोरिन सेफ है एंड मैक्रोलाइड सेफ है। मेनली ये 3 ग्रुप सेफ हैं, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड्स। बाकी ड्रग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द लाइकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल कंज्यूम्ड बाय द प्रेग्नेंट फीमेल। तो अगर टेंडन रप्चर आर्थ्रोपैथी है तो फ्लोरोक्विनोलोन से। वैसे भी यूटीआई में हम फ्लोरोक्विनोलोन यूज करते हैं, यहाँ पे गलती से यूज कर लिया तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो फ्लोरोक्विनोलोन का मैकेनिज्म क्या है, डीएनए गायरेज इनहिबिटर। ऐसी ड्रग जो माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोके, वो तो टीबी के लिए हो गई। फोलिक एसिड सिंथेसिस के लिए इनहिबिट कर रही है, सल्फोनामाइड हो गई। प्रोटीन सिंथेसिस में तो बहुत सारी हैं, तो कौन सी ड्रग है फ्लोरोक्विनोलोन्स, दीज आर डीएनए गायरेज इनहिबिटर। सो गाइज ये सारे टॉपिक्स जो भी मैंने आपको बताए इनको जरूर रिवाइज कर लेना। इन टॉपिक्स में से आपको जरूर 10-12 क्वेश्चंस मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस रिविजन। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।